सो अभी हमको एक डोंकी फार्म लेकर के आ रहे हैं। ये इट फील्स लाइक कि हम जम्मू में हैं। कितना गुलाटी साहब की कहते हो तुसी? जम्मू वर्गा ही लगता ना है। इंडिया वाली फीलिंग नहीं आ रही है? आ रही भाई, थोड़ी थोड़ी आ रही। मैं तब दस आ रहा बिल्कुल जमा वैष्णो देवी जैसा सब कुछ लग रहा है। इनका ये डोंकी फार्म 3.5 किलोमीटर है, वो भी पहाड़ की चढ़ाई पे। थक गए। हवा चल रही है लेकिन धूप है। धूप नहीं होती तो एक बार आ जाते। वेट कर रही है तो जाना कि जाना। ਅਸੀਂ पहुंच गए अपने घर गधे खाना है। No problem. Farm is 11 years old and there are several objectives. First one is protection of donkey. Donkey is a part of our cultural and natural heritage because there is no any house here in the village without donkeys for as the best ally in very hard life in our villages. Today people moved from the villages to the town, started to use machines, and donkeys simply became waste. When I started with the farm 11 years ago, cost for one donkey in animal market was only 25 euros. Usually they are bought by hunters because for 25 euros they buy 100 kilos of meat for hunting dogs. I was in Mondstadt, our statistical service, I don't know, institute. It was not more than 150 in whole country. It means one of the most endangered animal species in the country. Thanks to this farm, which is very popular in Montenegro, we saved the donkeys from extinction. Today is a museum of donkey. My grandfather was in Germany, and when Hitler came to the power, he bought and he bring everything here. Almost everything is from Germany and before Second World War. Inside of this building is visitor center of the farm where you can see more information about. And we produce donkey milk, which is very healthy for all respiratory disease, thanks to 2% of proteins. And these proteins are very healthy for cough, asthma, bronchitis, etc. Donkey milk is very healthy for skin disease. That's the shortest story about the farm. If you have any question, I'm here. Where is the disco club? Where is the disco club? We are organized a lot of events here, but we are part of nature park River Zeta Valley, and music cannot be very noisy here. Yeah. They listen classic music from 7 to 7 every day. Any question? Okay. You can see the farm, you can see museum and visitor center. About 80. 80. I don't know exact number because we can in 3 days we can 3 new phone runs. Three hours later. हाँ जी, तो आज थर्ड डे है और हम चले हैं ब्रेकफास्ट करने। इसके बाद कुछ साइट सीइंग्स के लिए जाना है 9 बजे। अभी बज रहे हैं 8 बजे अभी 8 बज रहे हैं 7:45। तो नीचे जाके दिखाते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। और मिलते हैं नीचे जाके आपको। सो अभी मैंने अपनी प्लेट में ये लिया है और मेरे ब्रेड सिक रहे हैं फ्रॉम दिस साइड एज वेल।
इसके बाद बटर लगा के खाते हैं कॉफ़ी लेकर के। वहाँ पे फ्रूट्स एंड ऑल भी हैं एंड इधर कॉफ़ी लगी है, इधर भी काफ़ी चीज़ें हैं। लेके चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको। सो ये मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है। अभी और ले लेंगे, साथ में जूस है। अभी अंडे भी लेते हैं क्योंकि इसके बाद हमें फिर घूमना है तो हमको कुछ खाने के लिए ताकत चाहिए। सो इट्स डे 3 एंड हम आ गए हैं बीच साइड। और आज का प्लान कुछ ऐसा है कि हमको बोट से कहीं कहीं ले करके जाएंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट विल लेट यू नो। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत ही खूबसूरत है, पानी बिल्कुल ब्लू एंड क्रिस्टल क्लियर वाटर। यू कैन हैव अ लुक। और हमें लेकर के जाएंगे एक आइलैंड पे। ये बच्चे ने पकड़ा। सो एवरीबॉडी इज़ हियर और ये हमें लेकर के जा रहे हैं एक आइलैंड पे जो कि एक मैन मेड आइलैंड है, नॉट नेचुरल वन। उस पे है एक चर्च, उसकी भी एक कहानी है, हम आपको सबको बताते हैं। ओके, हम बोट में जा रहे हैं। Yep. Berapa nama Dewangi? Oh my goodness, all right. Yeah, sure. तो बहुत मज़ा आ रहा है और पानी के छींटे आ रहे हैं मुंह पे और हवा बहुत तेज़ चल रही है, गर्मी और ठंडी हवा। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है और कितना खूबसूरत लग रहा है। I'm going to tell you about the... Can you hear me now? Yeah. I can tell you about it. So the Lady on the Rock is a very interesting story. It has two brothers that live in Herat. They went fishing one morning, and on the reef there was... So हम पहुंच गए हैं यहाँ पे Our Lady on the Rock पे। Wow, beautiful. So this is the Our Lady on the Rock. ये एक मैन मेड आइलैंड है, इंसानों ने पत्थर फेंक करके इसको बनाया है। और हर साल, पता नहीं हर साल या फिर एक फेस्टिवल होता है, लोग पत्थर लेकर के आते हैं और
इस आइलैंड के पास फेंकते हैं तो इवेंचुअली ये हर साल ग्रो कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। Our Lady on the Rock. So everybody is going inside of the church. Our Lady on the Rock. Let's see. So we got a ticket for this church. So now we are proceeding to the museum part of the church. The flooring. The Last Supper. Right? It's alright. No problem. Okay, everyone. Oh my goodness. What are these? It's so beautiful. Can I complete it? Very good. Antiques. It's time to go upstairs. अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं. The paintings show battles that people of Beras went through, and also the small room is the contemporary artists, not just from Montenegro, but actually from all over the world, bringing and donating their work. Another thing to show you here is this chest. This is actually a treasury chest, what you see with 3 different locks, and this is a family treasury box. So all the money goes over there. Mother, father, and the eldest child had a key. If one of them is not present, then no money gets it. So that's a very good thing, yeah? Of course, in the town, there was a bigger one with 5 different locks. And what is interesting in the town, the officials of the town will change quite frequently, every 2 months, let's say, so they don't develop corruption, right? But what I also wanted to show you here. So अंदर से बाहर जाने के लिए it's a way. So it's time to say bye bye to the island. अंदर बैठने जा रहे हैं हम.
Kotor. So, Kotor also अभी हम suffered कोतोर पहुंच गए हैं many and earthquakes. she is briefing Remember about that. 17th century earthquake and 1979 earthquake as well. When we get in front of the town, I'm going to give you the maps. You can see everything on the maps. They're very nice and beautiful detail. I'm not going to explain every single वहाँ house पहुँचने in के the बाद ये town. हम लोगों को मैप दे देगी There is no और point, हम yeah. अपने But आप I भी will घूम point you सकते हैं और इसके to the साथ भी main घूम सकते हैं places that can बट be एक डेफिनेट टाइम proceeded होता है उस in your free टाइम पे time. हमें So, मीटिंग we're पॉइंट going पे to आना the होता boat, which is going to land. है। सो हम कोतोर पहुँच गए हैं और अपनी बोट से उतर रहे हैं। इसके बाद हमारी गाइड कुछ ब्रीफिंग देगी हमें। उसके बाद शायद हमें मौका मिलेगा कि हम खुद से घूम सकें। उसके बाद हम बस पकड़ के होटल जाएंगे। अच्छा था आज का, देखते हैं क्या होता है, मिलता है। It's a church. Vlogging, huh? You want to say something? What do you? I mean, we're having a good trip. How are you? How are you enjoying it? Yeah, I'm enjoying so far. That's good. How is the place? What do you think about the place? Place is so good. It was not so good yesterday, but yeah, today we are enjoying. Yeah, So, what do you think we missed yesterday? Was it a good? nothing. It's a local market of Kotor. बिल्कुल इंडिया जैसी वाइब है, टपरी चाय की। Just like India, right? चाय की टपरी। हाँ? सो हमें एक मैप दिया गया है और एरिया खुद से घूमना होगा। कुछ ब्रीफिंग ये देंगी ऑब्वियसली, और उसके बाद एक डेफिनेट टाइम पे हमें मीटिंग पॉइंट पे आना होगा। फिर बस हमें लेके जाएगी होटल। You might want to join us. Our guide. Okay, who else needs a map? Who doesn't want to enjoy, explore, see what? No problem. Thank you very much. Who would like to hear something come close? Yes. Yes. So now we are standing in front of the main entrance, what local people call the main entrance. And on this main entrance you can see the date, 21st 11 1944. This is a year when Kotor was liberated in the Second World War. Okay. So we are going inside. A souvenir shop. It's like old town. यहाँ पे भी वैसा ही है सब कुछ ओल्ड टाउन की तरह, और सोविनियर शॉप्स हैं और रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, बहुत संगत है यहाँ पे। Clock tower, which is one of the symbols of the town, and usually they make a point. If you look at it closer, it doesn't stand straight. It's a little bit lean towards the left. तो ये बता रही हैं कि ये थोड़ा सा झुका हुआ है और ओल्ड टाउन की तरह नहीं है ये। इसमें लगभग 2-2.5 हज़ार लोग रहते हैं। तो ये बहुत फेमस है यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा सा झुका हुआ है। Pointed top over there. It's very simple. सो ये कैथीड्रल है और इसकी कहानी ये है कि देख सकते हैं ये दोनों सेम नहीं है। इसका कारण ये है कि
एंशियंट टाइम में ये गिर गया था और इसमें नीचे एक फैमिली की डेथ हो गई थी उसकी वजह से। फिर इसको बनाने की कोशिश की गई बट पैसे ख़त्म हो जाने की वजह से ये ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है और वो नहीं है। सो दैट्स व्हाई दीज बोथ आर नॉट सेम। इट्स अ कैथीड्रल। Catholic cathedral. On the walls inside you can see Orthodox frescoes. What happened? In 14th century, a group of दिस इज़ सेंट निकोलस चर्च और ये यहाँ का सबसे नया चर्च है जो कि बिगिनिंग ऑफ 12th सेंचुरी में बना था। पुराना है ये भी। ओके तो इसमें शुरू में आग भी लग गई थी। and during that period we had Austro-Hungarian Empire and they also gave money to Austrian. सो हम सेंट निकोलस चर्च के अंदर जा रहे हैं। सो दिस इज सो ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे पानी है इस स्क्वायर में पीने के लिए, समथिंग नॉट सो कॉमन इन यूरोप। आगे चलते हैं ऊपर चढ़ के। सो पौड़ियाँ चढ़ के खासी उत्ते आ गए ने। आ देखो व्यू, ब्यूटीफुल व्यू। थोड़ा बहुत ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਵਰ ਲੇਡੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਪਤਾ ਜੇ? ठीक है उनके हाँ मैं उन्होंने नाम बोलने लगा सी ਮੈਰੀ ਕਹਿੰਦੇ मैरी है ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰੀਮ ਕਹਿੰਦੇ। मरियम यार। ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਮਰੀਮ? सो हमारा कोतौर में जो टूर था वो अभी ओवर हो गया है और हम जा रहे हैं अपने कोचेस में। हाँ, थक गए यार, बहुत ज़्यादा हो गया। सो दिस इज़ द लास्ट डे हमारा मोंटेनीग्रो में। आज संडे के दिन सारी मार्केट्स बंद होती हैं बट रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस नियर ओल्ड टाउन। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत संगत आई है यहाँ पे, क्लास है। भाई अभी हम डिनर करके आ रहे थे रास्ते से और हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, और पेड़ पे हमको दिखता ही है, हमारी फट गई कि है क्या। भाई अगर यहाँ लाइट ना होती ना तो पैक हो जाता भाई आदमी। और भाई ये लगा क्यों रखा है इन्होंने यहाँ पे? पता नहीं भाई, ये काम ही रखा है जबरदस्ती से लग रहा है। भाई यहाँ हमें ये मिला। सो डिनर विनर करने के बाद हम आ गए हैं और अपने होटल के सामने, ये हमारा होटल है, बहुत बेहतरीन होटल है ये। नाइट लाइफ
12 बज रहे हैं और देख सकते हैं पूरी संगत है अभी बाहर। इट्स सो लाइवली, बहुत खूबसूरत है, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और अभी यहाँ पे देसी ना के बराबर दिखे हैं, तो बड़ी खूबसूरत जगह है घूमने के लिए। यूरोपियन है, कल्चर है, पहनावे बहुत अच्छे हैं, एवरीथिंग इज़ सो गुड। सो आज हमारा आखिरी दिन था यहाँ पे और फिर सुबह हमारी फ़्लाइट है। 9 बजे हमें ब्रेकफास्ट करके होटल से निकल जाना है। इसके बाद फ़्लाइट लेकर के सीधा बैक टू वर्क। अच्छा था। सो भाई कैसा था वीकेंड, मतलब वीकेंड नहीं कह सकते, कैसा था ट्रिप, कैसा था भाई? ट्रिप तो एक नंबर, तो मज़ा ही आ गया। मतलब जितना कम बताया जाए उतना कम है इस ट्रिप के बारे में। तो और जो भी हमने डिनर किया उसके बारे में क्या कहना है? यार तो डिनर भी लाजवाब, लाजवाब था, शानदार। 15 बहुत। पाउंड मतलब पेट भरे खाना खा लिया। यूरो में 15 यूरो में, पाउंड में भी नहीं, यूरो में। इट वॉज सो गुड। अच्छी जगह है रहने के लिए। अभी देसियों का इन्फ्लुएंस कम है, तो इसलिए अच्छी है। इसलिए बचा हुआ है, बाकी बहुत अच्छी जगह है। सो फार सो गुड। सी भाई आओ भाई, घूमने तो जरूर आना चाहिए। घूमने तो ज़रूर आना चाहिए, ट्रू। भाई ऐसी जगह मिस नहीं करनी चाहिए यार अपने लाइफ टाइम में कभी भी। और बेस्ट चीज़ ये है कि ये हमारा होटल है और सामने ही है बीच, पूरा सी फेसिंग एरिया, पूरा सी फेसिंग है, बहुत खूबसूरत है। हमारा होटल भी बहुत प्यारा है, वो तो आपने वीडियोस में देखा ही होगा। तो कल पर यहाँ से जाने का यार जो रियलिटी है। अच्छा, अभी मन है, मतलब थोड़ा 4-5 दिन और रुके यार, थोड़ा घूमे फिरे, अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए अच्छी जगह है। कार वार रेंट करो फिर निकलो घूमो, रेंट भी बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत, कॉस्ट ऑफ लिविंग सच में बहुत सही है। और ये कार रेंट हो रही है 25 यूरो पर डे के हिसाब से। आप भी लगा लो 2500 क्या होता है, 2500 क्या होता है भाई? और वो भी अच्छी कार, बढ़िया कार, गोल्फ, फोक्सवैगन की, और बढ़िया मतलब बड़ी कारें, छोटी कारें नहीं। और मर्सिडीज ये वगैरह भी तुम्हें 100 पाउंड तक की मिल जाएगी, मतलब 100 यूरो की, सॉरी। क्या होती भाई, इन सब कंट्रीज़ में कुछ नहीं है। यूके से बहुत अच्छा है ये इन सब मामलों में। ओके, मिलते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज ट्रिप का लास्ट डे था। डे क्या अभी शुरू सुबह हुई है और ब्रेकफास्ट कर लिया हमने और नीचे जा रहे हैं। अपना सामान पैक कर लिया हमने, सामान पैक कर लिया है और 9 बजे हमको निकलना है। अभी बज रहे हैं 8:40, तो सब नीचे आ गए हैं ऑलमोस्ट। मैं भी पहुंच रहा हूँ नीचे और उसके बाद सीधा एयरपोर्ट जाएंगे। उसके बाद चले जाएंगे अपने काम पर, अपने घर, मतलब जहाँ हम रहते हैं यूके में। सो इतने ही दिन का ट्रिप था, बहुत मज़ा आया यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी प्लेस है, बहुत लाइवली प्लेस है, वेदर भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। सो मिलते हैं फिर, बहुत अच्छा लगा। वी आर रेडी। बहुत लंबी लाइन है इमिग्रेशन की, वापस जाने वालों की। बाहर बारिश भी हो रही है तो कुछ फ़्लाइट्स डिले भी हो गई हैं। सो इमिग्रेशन करके मिलता है। सो आई एम डन विद द इमिग्रेशन। हमारा जेट बाहर है और भाई भी आ गया हमारा। स्टैंप नहीं लगी, कौन सा लगी है? हाँ मुझे लगी थी। कहते फाइनली टिकट चेक हो गया और ये हमारा प्लेन खड़ा है। एक प्लेन इधर भी खड़ा है। बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था, बहुत लेट हो गई यहाँ पे क्योंकि इनका सर्वर काम नहीं कर रहा था। अभी प्लेन में चल के बैठते हैं। लकीली मेरी विंडो सीट है अगेन, बट देखते हैं क्या मिलता है, पिछली बार की तरह ना हो। सो इस बार मेरे साथ मजाक नहीं हुआ, मैंने बोर्ड कर लिया है, विंडो सीट है एंड बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। अभी तक एसी भी नहीं हुआ है इसका, स्टिल थोड़ा समय है हमारे फ्लाई करने में। पासपोर्ट कंट्रोल में प्रॉब्लम ये आई थी कि इनका सर्वर आउट हो गया था
जिसकी वजह से ये मैनुअल कर रहे थे तो उसमें टाइम लग गया, बहुत समय लग गया। अभी सब ठीक है बाबा श्याम के आशीर्वाद से, तो मिलते हैं। तो हम पहुंच गए हैं यूके, फ्लाइट हमारी लैंड कर गई है और अब हम जा रहे हैं बर्मिंघम में इमिग्रेशन करा करके फिर बाहर निकलेंगे और उसके बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। द ट्रिप एंड्स हियर। थैंक यू गाइस। हाँ जी, तो हमारी इमिग्रेशन हो गई और हम बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद हम कन्वेंस लेकर के अपने अपने घर चले जाएंगे। हमारे ट्यूटर्स ने हमें बाय बोल दिया है। इट वॉज़ वेरी गुड, सब कुछ ट्रिप तो बहुत अच्छा था। उम्मीद करते हैं ऐसी और ट्रिप्स करने का मौका मिले, अगर कॉलेज के साथ तो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, बट खुद से फ्रेंड्स के साथ और भी ट्रिप्स आगे आएंगी। बाबा श्याम के आशीर्वाद से करेंगे। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय श्री श्याम।